welcome to my biology classes. Students, today I am going to teach you chapter 13 on population. In this chapter, we will deal with habitats, organisms, population, their interaction, etc. So now what do you understand by organisms? Organisms का मतलब क्या होता है? तो organisms जो होते हैं, they make the basic unit of study in ecology. ना इकोलॉजिकल स्टडी की बेसिक यूनिट जो होती है दैट इज द ऑर्गेनिज्म. और ईच लेवल पे जब हम देखते हैं द बायोलॉजिकल यूनिट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. At this level, the form, physiology, behavior, distribution, adaptation in relation to the environmental condition they are studied. Of the organism of the similar type, they have a potential of interbreeding and produce fertile offspring which are called as species. ठीक है, तो species क्या होगी? Species it is the basic unit of classification and species क्या होती है? They are the group of living organisms which are similar in structure, function and behavior, and the species of similar organisms, they are produced by similar parents and they can interbreed among each other and they are reproductively isolated from other group of organism. तो इस तरीके से species क्या हो गई? Species क्या हो गई? Organisms का similar type of organisms which have the potential for interbreeding and produce fertile offspring, they are called as species. Then comes population. अब population क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अगर एक ही स्पीशीज का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वहां पर क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन. तो किसी एरिया में, किसी एक प्लेस में अगर एक ही तरह के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज living at one place, they constitute a population. For example, we can say that all individuals of a common grass cynodon in a given area, it constitutes its population. Similarly, the individuals of elephants or tigers in an area constitute their population. And the interaction between the population, they are generally studied. These interaction may be predator and its prey or a parasite with its host. So here in this chapter we will also study about competition, mutualism, commensalism, parasitism and predation. These are the various type of interaction which we are going to study in this chapter. Now let us see organism and its environment. Organism और उसका environment. अब आपको ये अच्छे से मालूम है that the सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है और अर्थ जो है अपने खुद के एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है. बाय विच व्हाट हैपेंस, उसके कारण क्या होता है कि एनुअल वेरिएशंस आते हैं और टेम्परेचर का ड्यूरेशन जो है वो चेंज होता है एंड रिजल्टिंग इन द डिस्टिंक्ट सीजन, जिसके कारण क्या होता है? अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं. और इसके कारण क्या होता है कि एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन इज आल्सो देयर. बार बार क्या होता है कि इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन, जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग बायोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो व्हाट इज अ बायोम? बायोम क्या है? बायोम इज अ लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर वेजिटेशन टाइप and associated fauna found in a specific climatic zone. The biome, it includes all associated developing and modified communities occurring within the same climatic region. एक ही climatic region वाले जो है वो पूरा का पूरा वो जहाँ पर एक ही तरह के animals, एक specific type के vegetation, that means we can say a specific type of fauna, specific type of flora which is found in the same climatic region, it is called as a biome. जैसे forest biome, grassland biomes, desert biome, tundra biome, rainforest biomes. These are the different types of biomes according to the variation of the precipitation or the rainfall. Temperature, water, light,
सॉइल, ये सब क्या है, ये की एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण किसी एरिया में या हम कह सकते हैं किसी हैबिटेट के केमिकल और फिजिकल कंडीशंस में वेरिएशंस आते हैं। कहीं पर भी अगर हम देखते हैं कि डेजर्ट हैबिटेट है तो वहां पर हम देखते हैं कि उसको डेजर्ट हैबिटेट यानी कि वो कंडीशंस आने के लिए वहां पर वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सभी की एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण वो हैबिटेट जो है वो डेजर्ट के फॉर्म में चेंज हुआ है। So we can say that both abiotic, that is the physiochemical factors, and the biotic components, that is the pathogens हो गए, that means we can say biotic components में सारे living organisms आ जाएंगे। तो all types of pathogens, parasites, predators, competitors, ये सारे के सारे मिलकर क्या है, they characterize the habitat of an organism। कोई ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे हैबिटेट में रहता है, तो वहां के पूरे एबायोटिक फैक्टर्स और वहां के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कैरेक्टराइज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को। गॉट दिस? इस तरीके से हमने देखा कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स की मैंने बात करी, दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर ज्यादातर समय क्या होता है, बारिश गिरती रहती है और हमेशा ही हरे रहते हैं। दिस इज द डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पर पत्तियां वगैरह गिरती हैं। देन कम्स द डेजर्ट, ये देखिए आप। देन दिस इज द सी कोस्ट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं। नाउ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज सॉइल, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। These are the major abiotic factors which influences the habitat of an organism. अब हम एक एक करके एक एक abiotic factor को स्टडी करेंगे। The very first major abiotic factor, that is temperature. तो टेम्परेचर आपको पता है, इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इट इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस से क्या है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई होता है। अब हम थर्मल स्प्रिंग्स की या डीप सी वेंट्स की बात करते हैं, यानी कि समुद्र की गहराई में या गर्म पानी के जो झरने या स्प्रिंग्स होते हैं वहां पर क्या है, टेम्परेचर इट इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा होता है। अब यही टेम्परेचर के हिसाब से, दैट इज यू ऑल नो दैट वेरी वेल, कि जो टेम्परेचर होता है ये हमारे बॉडी के काइनेटिक्स पे, बॉडी के जो एंजाइम की जो एक्टिविटीज होती है और हमारे बॉडी के जो दूसरे फिजियोलॉजिकल जो एक्शंस होते हैं उनके लिए टेम्परेचर जो होता है वो अपना प्रभाव बहुत ज्यादा डालता है। सो टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस। तो टेम्परेचर के टॉलरेंस के हिसाब से कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, बाय on basis of that the organisms, they are of two types, eurythermal organisms and the xenothermal organisms। तो दो तरह के यहाँ पर organisms हो गए, eurythermal organisms and the xenothermal organisms। तो very first you know what do you understand by यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर काफी कम हो जाए या टेम्परेचर काफी बढ़ जाए तो भी उनको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो दोज ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। Then comes the stenothermal organisms। stenothermal organisms वो organisms होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। वो ऑर्गेनिजम्स दे कैन ओनली टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ कुछ ही टेम्परेचर में अगर ज्यादा गड़बड़ हुई तो वहां पर वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज द स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। So students, now let us see the next abiotic factor, that is water.
Water is also important factor that influences the life of organism. Okay, water आपको अच्छे से मालूम है कि how it is important for an organism. In fact, life on earth, we can say that it originated in water only and is unsustainable without water. पानी से ही लाइफ की शुरुआत भी हुई है और लाइफ के बिना जो है लाइफ के बिना वाटर के बिना जो है लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल and its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organisms to live there. And the productivity and the distribution of plants it also depends on water. किस जगह पर किसी habitat में वहां पर क्या productivity होगी, किस तरीके से plants वहां पर present होंगे, ये भी क्या करता है, ये depend करता है water पे ही. And the salinity of the water in the aquatic environment it also varies. Salinity का मतलब होता है खारापन. The presence of the salt in water it makes the salinity in water. तो salinity जो है aquatic environment में अलग अलग होती है. अगर हम fresh water की बात करते हैं जिसको कि मीठा पानी कहते हैं तो फ्रेश वाटर में जो है ओनली 5% सैलिनिटी इज देयर इन इनलैंड वाटर या फ्रेश वाटर जिसको कि हम नदी झरने इन पानी की बात करते हैं. और दूसरा है कि जो सी वाटर होते हैं उसमें 30 से लेके 35% जो है सैलिनिटी होती है. तो 30 से 35% सैलिनिटी जो है इट इज प्रेजेंट इन sea water and more than 100% in the hypersaline lagoons. जो hypersaline lagoons होते हैं जो कि बहुत खारे पानी वाले होते हैं तो उसमें 100% जो है वो salinity होती है. तो इसके हिसाब से organisms जो है यहाँ पर अलग अलग रेंज वाले मिलेंगे. So the organisms which can tolerate wide range of salinity, those organisms they are called as the euryhaline organisms, and the organisms which can tolerate a narrow range of salinity they are called as the stenohaline organisms. क्योंकि क्या होता है कि जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa. या sea water वाले जो animals हैं वो fresh water में नहीं रह सकते because they face osmotic problem. उनको osmotic problem हो सकती है. That is why अगर वो fresh water वाले saline water में रहेंगे तो fresh water वालों का जो पूरा जो अंदर का उनका water है उसको वो lose कर देंगे because of the process of osmosis, that is the movement of the solvent or the water from its higher concentration to lower concentration. और ऐसे ही अगर सलाइन वाटर में हम फ्रेश वाटर को रख देंगे ये वाली हमने देख ली और वही अगर हम जो सलाइन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर हम फ्रेश वाटर में रख देते हैं तो क्या होगा उनके अंदर पानी का मूवमेंट होगा. तो इस तरीके से जो है organisms they cannot survive in different salinity. तो जो जहां के लिए है वो वहीं पर ही present होगा. So the organisms which can tolerate wide range of salinity they are called as the euryhaline organisms, and the organisms which can tolerate narrow range of salinity they are called as the stenohaline organisms. Now let us see the next major abiotic factor, that is light. As you all know very well that the plant they produce food by the process of photosynthesis, and photo का मतलब ही light होता है. So this photosynthesis process it is only possible in the presence of light. Light की ही presence में ये जो photosynthesis की process होती है ये पूरी हो सकती है. So we can say that since plants they produce food through photosynthesis and this process it is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms. और we can say कि autotrophs के लिए जो है light बहुत ज़्यादा important होती है. कुछ प्लांट स्पीशीज जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये भी क्या है कि फॉरेस्ट में ये भी उगते हैं और ये
इनको उतनी लाइट नहीं मिल पाती क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रीज वगैरह जो है फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो उनके ट्री के नीचे जो है वी कैन से दैट अंडर कैनोपी ऑफ दिस बिग ट्रीज, ये जो बड़ी बड़ी ट्रीज के नीचे जो प्लांट्स, ये जो छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स रहते हैं उसको कहा जाता है दे आर अंडर द कैनोपी ऑफ दोज बिग ट्रीज। तो ये क्या होते हैं, ये हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं they are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees। जैसे अगर आप बैनियन ट्री की बात करते हैं तो उसकी आप देखते हैं ऊपर से ब्रांचेस काफी दूर तक फैली होती है और उसके नीचे भी कई छोटे छोटे प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स जो है वो लगे रहते हैं, तो दे आर सेड एज द कैनोपीड ट्रीज। और उस कैनोपी ट्रीज के अंडर ये छोटे छोटे से हर्ब्स और श्रब्स रहते हैं, तो ये इस तरीके से अडेप्टेड हो जाते हैं कि कम लो लाइट भी की कंडीशन भी रहेगी तो भी उसमें ये फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली कर सकते हैं। Many plants, they are also, they are dependent on sunlight to meet their photoperiodic responses like flowering। हमने प्लांट क्लास 11th में पढ़ा था लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, दैट इज कुछ प्लांट्स जो रहते हैं उनको फ्लावरिंग के लिए कम लाइट ड्यूरेशन की जरूरत होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे ड्यूरेशन की जरूरत होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द लॉन्ग डे प्लांट्स एंड द short day plants। For many animals too, light is important in that they use the diurnal and the seasonal variation in light intensity and duration as cues for times their foraging, reproductive and the migratory activities। है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स ही को लाइट की जरूरत होती है, कई एनिमल्स भी होते हैं जिनको की अलग अलग लाइट ड्यूरेशन की जरूरत होती है। उनको जैसे हम देखते हैं कि जैसे दिन का समय होता है तो फोरेजिंग के लिए जो है बर्ड्स की, फोरेजिंग का मतलब होता है बर्ड्स जो अपने दे गो फॉर सर्च ऑफ फूड। जैसे मॉर्निंग होता है आप देखते हैं चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती है और बर्ड्स जो है वो अपने दाने चुनने के लिए चली जाती है, तो ये उनकी एक्टिविटीज लाइट, ऐसा नहीं रात के समय आप नहीं देखेंगे उनको चले जाएंगे, तो वो दिन के समय जैसे दिन की शुरुआत होती है वो वहां पर चले जाते हैं फॉर देयर फोरेजिंग। तो इस तरीके से वी कैन से दैट द लाइट एंड द लाइट इंटेंसिटी it is also necessary for the seasonal variation and also for the migratory activities of the birds। Now let us see the next, we can see the effect of light on the aquatic ecosystem। aquatic ecosystem में हम light का effect देखेंगे। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर, वैसे ये आपको एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। In an aquatic ecosystem, availability of light determine the distribution of the organism in different depth। आपको पता है अगर हम एक समुद्र की बात करते तो काफी गहरा होता है, तो उसमें लाइट की अवेलेबिलिटी हर गहराई में अलग अलग होती है, तो अलग अलग लाइट की अवेलेबिलिटी अलग अलग डेप्थ में अलग अलग होने के कारण वहां जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट होता है। So we can say that the distribution of the organism in different depth, it is determined by the availability of the light in the aquatic ecosystem। The depth up to which the light can penetrate, it is called as the photic zone। तो वो जोन जहां तक की लाइट जो है वो पेनिट्रेट करके चली जाती है, जिस गहराई तक हमको लाइट अगर जा सकती है तो दैट इज कॉल्ड एज द फोटिक जोन। और वो एरिया जहां पर की लाइट पेनिट्रेट नहीं करके जाती दैट इज कॉल्ड एज द एफोटिक जोन। तो फोटिक जोन आपके फोटोसिंथेसिस से ही आपको समझ में आना चाहिए। तो पानी की वो डेप्थ जहां तक की लाइट पेनिट्रेट करके जा सकती है दैट इज कॉल्ड एज द फोटिक जोन, एंड वेयर द लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इट इज कॉल्ड एज द एफोटिक जोन। तो इस तरीके से डिफरेंट डेप्थ पे जो है अलग अलग जोन्स होते हैं। Now 3 zones, they are distinguished in the lake depending upon the penetration of light। लाइट अगर हम यहाँ पर एक लेक की बात करते हैं तो लाइट पेनिट्रेट करने वाले फोटिक जोन है, तो उस फोटिक जोन में भी कितनी लाइट पेनिट्रेट करती है
उसके हिसाब से फिर से 3 जोन में उसको फोटिक जोन को डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट इज द लिटोरल जोन। तो इट इज द शैलो वाटर जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। आप जनरली कई समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आप जाते हैं तो आपके पैर आप हल्के से उसमें जब चलते हैं थोड़े पानी वाले एरिया में, तो वो जो है दैट इज द शैलो वाटर जोन अराउंड द एज ऑफ द लेक। दैट मीन्स एकदम किनारे पे हम जब रहते हैं तो वो जो एरिया है जहाँ पर की पानी है वहां पर, लेकिन बहुत गहराई में पानी नहीं है, तो उस एरिया में लाइट जो है पूरे बॉटम तक ट्रेवल करती है, पेनिट्रेट करती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द लिटोरल जोन। और यहाँ पर क्या है, दिस रीजन इट इज ऑक्यूपाइड बाय द रूटेड प्लांट। अब चूंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइट पूरी तरीके से अंदर जा रही है ना। दिस इज द शैलो वाटर, एकदम किनारे किनारे की बात कर रही हूँ मैं आपको, लेक के किनारे या नदी के एकदम किनारे की बात करी, जहां पर की लाइट पूरी तरीके से बॉटम तक जा रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, जैसे जब आप चलते हैं तो पानी के नीचे आपको पूरा पैर आपका दिखाई देगा। तो दैट इज द लाइट, इट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द वाटर अप टू द बॉटम। और यहाँ पर क्या है कि आपके रूटेड प्लांट्स जो है, दिस रीजन इट इज ऑक्यूपाइड बाय द रूटेड प्लांट। So this is called as the littoral zone. Now next is the limnatic zone. Limnatic zone जो है, this is the open water beyond the littoral zone. Littoral zone के आगे जो है पूरा का पूरा जो ओपन वाटर हमको दिखाई देता है, ये जिस तरीके से आपको सामने ये पूरे के पूरे ऊपर फिशेस दिखाई दे रही हैं, that is the open water zone, that is called as the limnatic zone। यानी कि किनारे से जब आगे आप ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा फिर आपको पूरी नदी या पूरा लेक दिखाई देता है, ओपन वाटर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में भी क्या है, लाइट कैन पेनिट्रेट अप टू सर्टेन डेप्थ एंड दैट पार्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोटिक जोन। तो अपर पार्ट ऑफ द फोटिक जोन, जिसमें कि बहुत ज्यादा, आप देखिए जैसे पूरा आपको एक समुद्र का समुद्र दिखाई दे रहा है, तो उसमें पूरे पे ही लाइट पड़ रही है, ऊपर से सन की पूरी लाइट आ रही है, तो ऊपर का पूरे अपर पार्ट में पूरी की पूरी लाइट पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फोटिक जोन। और वही फोटिक जोन में हम देखेंगे कि कुछ डेप्थ तक ये फोटिक जोन रहेगा, और जिस जगह पर फोटिक जोन में बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द यूफोटिक जोन। क्योंकि फोटिक जोन हम किसको कह रहे हैं, जहां तक की लाइट एंटर हो रही है। तो फोटिक जोन में भी लाइट कुछ एरिया में ऐसी जगह पर एंटर होगी जहां पर कि बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ यूफोटिक जोन। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो ऐसे यूफोटिक जोन वो जोन है जहां पर कि फोटिक जोन का वो पार्ट विच इज रिसीविंग द एबंडेंट लाइट, और फोटिक जोन का लोअर पार्ट जहां पर की थोड़ी डिफ्यूज लाइट जाती है, जहां पर की थोड़ी कम लाइट जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्फोटिक जोन। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्फोटिक जोन कहते हैं। तो इस तरीके से फोटिक जोन को भी इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, यूफोटिक जोन एंड द डिस्फोटिक जोन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आपको पता है, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, दे ग्रो एबंडेंटली इन दिस यूफोटिक जोन। इस यूफोटिक जोन में बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं। सरफेस लेयर ग्रो ऑफ द वाटर बॉडी एंड सम अदर सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन द डिस्फोटिक जोन। डिस्फोटिक जोन में जो थोड़े डूबे हुए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डिस्फोटिक जोन में ग्रो करते हैं। तो डिस्फोटिक जोन में क्या हो गए आपके सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, सबमर्ज मतलब डूबे हुए एक्वेटिक प्लांट होते हैं। Then next comes the profundal zone. Next profundal zone आ गया, this is the darkest zone or the deep water below the photic zone where no light penetrates. प्रोफंडल जोन में बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी एंड द सेडिमेंट्स फॉर्म द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। ऊपर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होगी, वो नीचे आके सेटल हो जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा सेडिमेंट जो है वाटर बॉडी के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। तो दिस बॉटम रीजन वेयर द सेडिमेंट्स दे आर प्रेजेंट, दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज द बेंथिक रीजन। उस रीजन को हम बेंथिक रीजन कहते हैं।
और बेंथिक रीजन में भी आप देखिए, अगर आपने समुद्र की गहराई ये हमने उसमें अगर आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह में आप देखते हैं तो एकदम डीप में भी जो है एकदम जो बॉटम रहता है वहां पर भी सी वॉक करते हैं लोग, तो दैट इज कॉल्ड एज द बेंथिक रीजन। तो वहां पर कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्नेल्स हैं, डीप वाटर फिशेस हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं, और ज्यादा करके ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे फीड ऑन द डेट्राइटस, है ना, जो सड़ी गली चीजें होती कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर्स, जो अपर लेयर से जो डेट्राइटस आ रहा है उस पर ये फीड करती है, या तो ये दे आर कार्निवोरस, दे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ये फीड करती है। तो प्रोफंडल जोन क्या है? दिस इज द डार्क जोन और द डीप वाटर बिलो द फोटिक जोन, जहां तक लाइट आ रही है, फोटिक और डिस्फोटिक दोनों ही, जितने भी मतलब थोड़ी भी लाइट जहां तक पेनिट्रेट होना बंद हो गई है, पूरी की पूरी लाइट यहाँ पर खत्म हो गई है, तो यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड एज द प्रोफंडल जोन वेयर नो लाइट पेनिट्रेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेजर एबायोटिक फैक्टर वी विल सी दैट इज द सॉइल। तो सॉइल इज द मेजर नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर। To the nature and the properties of a soil, it varies according to the climate. सबसे पहला है कि वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की सॉइल वहां पर प्रेजेंट होगी, एंड ऑल्सो ऑन द वीदरिंग प्रोसेस। जिस तरीके से आपको पता है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल इज फॉर्म बाय द वीदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वीदरिंग से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वीदरिंग की प्रोसेस किस तरीके की है या क्लाइमेट वहां का कैसा है, उसके हिसाब से वहां की सॉइल की प्रॉपर्टीज वेरी करती है। अब सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन का साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइंस द परकोलेशन एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल? अगर मैं एक जैसे गमला लेती हूँ, उस गमले के नीचे मैं होल कर देती हूँ, और उसके बाद उसमें मैं 3 गमले ले लेती हूँ। एक में तो मैं डाल देती हूँ डेजर्ट सॉइल, बालू रेत, और दूसरे में मैं डाल देती हूँ रोड के साइड की जो सॉइल होती है वो, और तीसरे गमले में डाल देती हूँ मैं गार्डन सॉइल। और उसके बाद तीनों का ही मैं मिट्टी की जो क्वांटिटी है बराबर रहती है। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है आपको 12th में, तो समझिए कि मैंने उसमें 2 kgs जो है उसके अंदर सॉइल डाल दी है, हर टाइप की सॉइल। फिर उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, 200 ml ऑफ वाटर सभी में डाल देती हूँ, 200 ml ऑफ वाटर। फिर देखते हैं कि नीचे से किसके पानी बाहर निकल गया और कितना पानी निकला। तो जिसमें से जितना ज्यादा पानी बाहर निकल गया उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी कम होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि जो डेजर्ट सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। आपको पता है बालू रेत जो है वो पानी को इतना अच्छे से होल्ड करके नहीं रख सकती है, तो इसीलिए, और जो गार्डन सॉइल होती है वो बहुत अच्छे से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उस वाले गमले से जो है वो पानी परकोलेट कम होगा। तो in this way we can determine the water holding capacity of a soil. ग्रेन का साइज भी हम देखेंगे कि जो गार्डन सॉइल रहती है या क्ले का साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, और फिर बालू रेत का या सैंडी सॉइल का जो है ग्रेन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। एंड सॉइल कंपोजिशन की, सॉइल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मिनरल्स कौन से प्रेजेंट हैं, इस तरीके से सॉइल कंपोजिशन आता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद द पीएच एंड द मिनरल कंपोजिशन, ये भी जो है सारा का सारा सॉइल की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है कि उस सॉइल का पीएच कैसा है, उसमें कैसे मिनरल प्रेजेंट है। देखिए आपको पीएच ऑफ द सॉइल को डिटरमाइन करने का भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, ये तीनों ही जो टाइप की सॉइल्स हैं इसके अंदर पानी, इसको थोड़ी सी सॉइल की क्वांटिटी लेते हैं और उसको पानी में घोल देते हैं, तो ऊपर क्या है पूरा का पूरा पानी, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी उसका ऊपर आ जाता है। उसके अंदर फिर हम पीएच पेपर को डालकर देख सकते हैं कि उस सॉइल का पीएच कैसा है। तो इस पीएच के हिसाब से भी वहां पर कैसा वेजिटेशन होगा उस एरिया का, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप और द टोपोग्राफी ऑफ दैट area. The sediment characteristic often determine the type of the benthic animal in the aquatic environment. तो aquatic environment में अब sediment का जो characteristic होता है
जो नीचे जो एकदम बैठ जाती है जमीन की जो तली पे, समुद्र की जो तली पे, जो ये एकदम नीचे बॉटम पे जो सेडिमेंट होते हैं, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि वहां के एनिमल्स किस तरीके के होंगे। नाउ लेट अस सी कि इस तरीके का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स अपने आप को किस तरीके से कोप अप करते हैं या किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं इन डिफरेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो वेरी फर्स्ट लेट अस सी अबाउट द रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? तो रेगुलेशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस विच इंश्योर्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के टेम्परेचर हमको पता है हमारा 98.6 एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है ना। तो उसके बाद एक हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहता है बाय द किडनी। दैट मींस मिनरल का और वाटर का जो बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं और अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो दैट property it is of maintenance of this body temperature and osmotic concentration, it is called as homeostasis। इसको हम homeostasis कहते हैं और इस प्रोसेस को रेगुलेशन भी कहा जाता है। तो सारे ही बर्ड्स और सारे ही मैमल्स जो हैं और कुछ फ्यू लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन। दैट इज टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है इट इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का जो रेगुलेशन है इट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कि लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, दे डू नॉट यूज मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बट दे टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। तो लिजर्ड्स और स्नेक्स क्या है? ये रेप्टाइल्स हैं, ये रेगुलेट नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। तो दे आर नॉट एज द रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स कौन है? बर्ड्स, मैमल्स एंड सर्टेन इन्वर्टिब्रेट्स, दे आर कॉल्ड एज द रेगुलेटर्स। तो इस तरीके से आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। रेगुलेटर्स के लिए एक लंबी लाइन है, कन्फर्मर्स जो है वो चेंज करते रहते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। अभी मैं कन्फर्मर्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो रेगुलेशन इज क्लियर आई थिंक सो स्टूडेंट्स। अब जो मैमल्स का सक्सेस ही जो है पूरे इवोल्यूशन के दौरान दैट इज ओनली ड्यू टू द थर्मो रेगुलेशन एट दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर of 37 degree Celsius और 98.6 डिग्री। तो व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इट इज, अब किस तरीके से ये मेंटेन करती है? उसको मेंटेन करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को ये किस तरीके से मेंटेन करते हैं? नाउ लेट अस सी। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आपको मालूम है मैमल्स वगैरह को क्या होता है? पसीना आता है ना। और पसीना क्यों आता है? क्योंकि इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होगी, कूलिंग होने से उनके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई वी स्वेट प्रोफ्यूजली एंड इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्स प्लेस एंड टू ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर डाउन। नाउ विंटर में क्या होता है? इन विंटर पानी जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, इट इज वेरी लो टेम्परेचर आउटसाइड एंड आवर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर इतना गिर जाएगा अगर बाहर के हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम शिवर करते हैं। शिवर करते या अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हीट जनरेट होती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। हम कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाइयां ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, आग अपने चारों तरफ हीटर्स वगैरह लगा लेते हैं। तो इस तरीके से we maintain a temperature to 37 degree Celsius. So this is how the mammals they thermoregulate their body temperature to 37 degree Celsius. Now let us see confirm. अब confirm में क्या होता है?
मेजॉरिटी ऑफ 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, 99% एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट टेम्परेचर। जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो वेरी करता है। और एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी जो है उनके एम्बिएंट वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का उनके आसपास का जो पानी है उसमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा, उसमें जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन होगा, उसमें जो मिनरल बैलेंस होगा, उसी हिसाब से उनकी बॉडी का भी चेंज हो जाता है। दैट इज वाई सिंपली इस तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट मेंटेन a constant internal body temperature. So we can say that 99% of animals and nearly all the plants, they cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient air, water concentration, etc. These animals are simply called as conformers. And considering to the benefits of a constant internal environment of an organism, we must ask why these conformers they have not evolved to become the regulators. ठीक है, conformers जो है वो regulators में क्यों change नहीं हुए हैं? So why the conformers they have not evolved to become the regulators? तो ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि थर्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी एनिमल्स। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन आपको पता है, मैंने बोला कि हम शिवर करेंगे, हाथों को पूरा एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे या कई ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कि हमारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर रेज हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी जो है उसको वेस्ट करना पड़ता है, जो एनर्जी जो है उसको एक्सपेंस करनी पड़ती है। तो हर एनिमल के लिए ये एक्सपेंसिव प्रोसेस जो है इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स, they cannot afford so much energy for thermoregulation because heat loss or heat gain it is the function of surface area. So small animals में क्या है, they have larger surface area relative to their body volume. अब वो जो छोटे छोटे एनिमल्स है लेकिन उसमें भी थर्मोरेगुलेशन तो हो रहा है। इनमें बर्ड्स में मैंने आपसे कहा बर्ड्स में और मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन हो रहा है। तो अगर ये थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस हम कह रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूमिंग है, तो फिर अब ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस अगर है तो ये छोटे छोटे से एनिमल्स इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर एक और रीजन आता है कि हीट लॉस या हीट गेन जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। आपको अच्छे से मालूम इवेपोरेशन की प्रोसेस है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन जो है वो होता है। जैसे अगर मैं ग्लास में पानी रख देती हूँ तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, वो 15 दिन में वो ग्लास का पानी जो है वो पूरा उड़ेगा। लेकिन वही एक ग्लास के पानी को अगर मैं एक लार्जर सरफेस एरिया में पूरा फैला देती हूँ तो क्या होगा कि वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो वी कैन से दैट द हीट लॉस और द हीट गेन इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर स्मॉल एनिमल्स दे हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर बॉडी वॉल्यूम। आप यही छोटी बर्ड को अगर अपने हाथ में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका वजन महसूस ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो वी कैन से ओवर हियर दैट दे आर हैविंग लार्जर सरफेस एरिया in comparison to their body volume, so they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. तो इसीलिए क्या है, उनका लार्जर सरफेस एरिया होने के कारण वो बॉडी के हीट को क्या कर देते हैं, जल्दी लॉस कर देते हैं। इसीलिए दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, तो उनको ज्यादा जो है हीट जनरेट करनी पड़ेगी और ज्यादा हीट जनरेट करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी जो है उसको एक्सपेंस करनी पड़ेगी।
इसीलिए ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं दे आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में ये छोटे एनिमल्स नहीं प्रेजेंट होते। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई स्मॉल एनिमल्स दे आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, या व्हाई द कन्फर्मर्स दे आर नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। So here you have to give the answer that the thermoregulation, it is energetically expensive for many animals, and some animals like shrews and hummingbirds, they cannot afford so much energy for thermoregulation. And heat loss or heat gain, it is a function of surface area. So small animals, they have larger surface area in comparison to their body volume. इस तरीके से क्या होगा कि when there is cold outside, they have to expend much more energy to generate body heat through metabolism. That is why small animals, they are not found in the polar regions. So during the course of evolution, the cost and the benefits of maintaining the constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved to ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they are simply conformers only. So that is why we say that this is the main reason कि why the conformers, they have not evolved to become the regulators, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी को है एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी के लिए दे हैव टू ईट मोर फूड, तो उसका बॉडी वॉल्यूम उनका ज्यादा नहीं है। तो दैट इज व्हाई द कन्फर्मर्स दे हैव नॉट इवॉल्व टू बिकम द रेगुलेटर। Students, now let us see the alternative response for the stressful conditions is localized or remains for a short duration। इसका मतलब इसके पहले हमने देखा था होम्योस्टेसिस या रेगुलेट या कन्फर्मर्स, तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स फॉर दिस स्ट्रेसफुल कंडीशंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि समझिए कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस सिर्फ लोकलाइज्ड हैं या कुछ ही समय के लिए हैं, या these stressful conditions they are for a short duration of time। तो यहाँ पर एनिमल क्या करेगा, वो अपने आप को अडाप्ट ना करते हुए वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कुछ समय के लिए वहां से दूर चला जाएगा, और वापस जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो दे विल कम बैक टू दैट हॉस्पिटेबल कंडीशन। So this is called as migration। तो इस प्रोसेस को हम माइग्रेट कहते हैं। So what happens in this? The organisms move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful condition is over। तो organism यहाँ पर कुछ समय के लिए मतलब कि temporarily उस स्ट्रेसफुल हैबिटेट से दूसरी जगह चला जाता है या दूसरे एरिया में चला जाता है, वो एरिया विच इज मोर हॉस्पिटेबल, जो कि उसके लिए ज्यादा हॉस्पिटेबल है। और जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाएंगी तो वापस वो जो ऑर्गेनिज्म रिटर्न बैक हो जाएगा टू दैट कंडीशन। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। जैसे कि बर्ड्स दे माइग्रेट फ्रॉम द कोल्डर रीजन टू द वार्मर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। हमने साइबेरियन क्रेन्स के बारे में सुना होगा, फ्लैमिंगोस आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये फ्लैमिंगोस क्या है, गुजरात में आती हैं। दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सस्पेंड। नाउ व्हाट इज सस्पेंड? Thick walled spores, they are formed in the microbes to overcome the unfavorable stressful external environment या external conditions। अगर unfavorable होती हैं या stressful होती हैं तो क्या होता है कि जैसे प्लांट्स हैं उसके भी आप सीड्स को देखेंगे, या आपको पता है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, अपने चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये थिक वॉल जो है अंदर उसको सेव करके रखता है उस सीड को या उस ऑर्गेनिज्म को, और बाहर के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये स्पोर्स जो हैं दे जर्मिनेट इन द फेवरेबल कंडीशन। तो जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी उस ऑर्गेनिज्म के लिए तब ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। हायर प्लांट्स में भी वीसी, जैसे कि घर में हमने देखा है कि हमने चने रख देते हैं, मटर रख देते हैं, तो दीज आर इन द स्ट्रेसफुल कंडीशंस।
तो जैसे ही हम इनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे, यानी कि जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, दैट मीन्स द कंडीशंस आर फेवरेबल, या इसको हम सॉइल में सो करेंगे, तो क्या होता है, ये सीड्स दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज द डोरमेंसी स्टेट. तो जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस्ड रहती हैं और बाहर का एटमॉस्फेयर स्ट्रेसफुल रहता है, तो क्या होता है कि ये जो स्पोर्स हैं या ये जो सीड्स हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ डोरमेंसी. ये क्या है, डोरमेंसी की स्टेज में होती हैं. सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. तो सस्पेंशन या सस्पेंड में क्या होता है, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर रिड्यूस्ड एंड दिस स्टेट इट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी. Now let us see the next condition, that is hibernation and estivation. आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये पोलर बियर है और यहाँ पर फ्रॉग है. तो विंटर स्लीप जो है इट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन एंड समर स्लीप इट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो विंटर एनिमल्स होते हैं जैसे कि बियर्स, वो उस ठंड के एकदम जब बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ता है तो उस विंटर से एस्केप करने के लिए ये जो पोलर बियर्स हैं दे एंटर द स्टेज दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. तो ये क्या करते हैं कि ठंड से पहले बहुत ज्यादा खाना वगैरह खा लेते हैं और काफी फैट हो जाते हैं और उनके स्किन के नीचे एक फैटी लेयर का फॉर्मेशन भी हो जाता है, जो कि जब ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं तो उसी फैट के ऑक्सीडेशन से इनको फूड जो है वो मिलता है. सो नेक्स्ट इज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन में क्या होता है, एनिमल्स जैसे कि स्नेल है, फिश है, आपको पता है कि जो फ्रॉग्स हैं ये आपको गर्मियों में दिखाई नहीं देते हैं. तो क्या होता है, ये समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचने के लिए ये थोड़ी गीली या दलदली मिट्टी के अंदर चले जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन. अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डायपोजेस. डायपोजेस भी क्या है कि टेम्पररीली जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से कोप अप करने के लिए वे होता है. तो वेरी नाउ सी लेट अस व्हाट इज डायपोज. डायपोज में क्या होता है, दिस इज कि मैनी जू प्लैंक्टन जो होते हैं, जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, दे आर द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन. ये क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो दे अंडरगो अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब है कि उनकी बॉडी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टॉप हो जाती हैं ड्यूरिंग दिस अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि उनका लाइफ जो है वो पॉज हो जाता है. That is why this is called as diapauses. So these all were the different ways in which the organism they cope up temporarily from the stressful condition. Now let us see the next attribute, that is of the organism, that is adaptation. Adaptation आप काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो adaptation क्या है, adaptation organism का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें कि वो अपनी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस करता है, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म उस स्ट्रेसफुल कंडीशन या जो भी हैबिटेट में वो रह रहा है, स्ट्रेसफुल नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, ये कहेंगे जिस भी हैबिटेट में वो रह रहा है, भले ही वो गर्म पानी वाले एरिया में रह रहा हो या हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रह रहा है या डेजर्ट में रह रहा है या पोलर रीजन में रह रहा है, वो भी क्या है, एक तरह से एक स्ट्रेसफुल कंडीशन सी है. लेकिन उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो वहां से कहीं दूर माइग्रेट होकर नहीं जा रहा है, बल्कि उसी कंडीशन में अपने आप को, अपनी बॉडी को मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर उसने अपने आप को उस हैबिटेट के हिसाब से या उस हैबिटेट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को इनेबल कर लिया है. दैट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन. So here we will see the different types of adaptation which is found in desert and the aquatic environment. तो सबसे पहले हम देखेंगे adaptation of the animals in desert. Desert में रहने वाले जो animals होते हैं उसमें किस तरीके का adaptation मिलता है. You know very well कि desert में camels भी मिलते हैं, kangaroo, rat, these all are found in desert. These are the desert animals. तो एनिमल्स में जो एडाप्टेशन मिलता है डेजर्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द ज़ेरिक एडाप्टेशन. उसको हम ज़ेरिक एडाप्टेशन कहते हैं. और वहां पर यू नो वेरी वेल कि डेजर्ट में पानी कम होता है, तो उस वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
यहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं और अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यू नो वेरी वेल, इन क्लास 11th हमने रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि फैट जो है वो भी क्या होता है, उसका भी रेस्पिरेशन होता है, उसका भी ऑक्सीडेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। So we say over here that kangaroo rat, they meet their water requirement from the oxidation of fat, and they also excrete very concentrated urine to conserve water. पानी को बचाने के लिए वो बहुत ज्यादा concentrated urine जो है उसको secrete करते हैं। तो they excrete very concentrated urine to conserve water. पानी को बचाने के लिए वो यूरिन में बहुत कम वाटर को excrete करते हैं। So this is the xeric adaptation in animals. Now let us see the adaptation in the desert plants. Desert plants को हम xerophytes कहते हैं। So what are xerophytes? Xerophytes means the desert plants. अब desert plants में आप देख सकते हैं ये एक leaf का section है, तो they have thick cuticles on their surface. उनके surface पे क्या है, thick cuticle जो है it is present. तो थिक क्यूटिकल का मतलब है ये देखिए आपको एपिडर्मिस के लेयर के ऊपर जो है ये एक और लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की। तो यहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं उसका क्यूटिकल कैसा होता है, इट इज थिक, वो मोटा होता है। एंड द स्टोमेटा इट इज संकन, ये देखिए स्टोमेटा जो है वो अंदर धसा हुआ है। दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। आपको पता है नॉर्मल जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें एपिडर्मिस के सरफेस पर ही क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा दे आर संकन, यहाँ पर ये इन्वेजिनेशन हो गया, अंदर धस गए हैं। तो वी कैन से दैट द संकन स्टोमेटा इज प्रेजेंट। तो व्हाई संकन स्टोमेटा इज प्रेजेंट? टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए पानी जो है वो कम इवेपोरेट हो फ्रॉम द प्लांट, दैट इज व्हाई द संकन स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट। और इनका स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, जैसे कि C4 साइकिल इसमें होती है। और स्टोमेटा जो है वो रात के समय खुले रहते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। So these are the adaptation in the xerophytic plants। और भी हैं इसमें adaptation, आपको बता रही हूँ मैं। You can see this is the figure या this is the image of an opuntia और this is a desert plant। यहाँ पर क्या है, opuntia has no leaf, they are reduced to spines। ओपनशिया में क्या है कि पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो दे गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ये जो आपको कांटे दिखाई देते हैं यहाँ पर इस ओपनशिया के ऊपर, ये क्या है, यही एक्चुअली इसकी लीव्स होती हैं। यहाँ जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि लीव्स से क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए द लीव्स दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। और स्टोमेटा इसके संकन है, धसे हुए हैं। एंड द फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्लैट ग्रीन स्टेम। ये जो आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर। एंड सकुलेंट, सकुलेंट का मतलब है अंदर गद्देदार पानी रस से भरा हुआ होता है, तो दैट टाइप ऑफ स्टेम्स दे आर कॉल्ड एज द सकुलेंट स्टेम्स। और इसी स्टेम से क्या होता है, ये ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस। Now let us see the adaptation in this animals in the cold climate. Now let us see the adaptation of the animals in the cold climate. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक होता है एलेंस रूल। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ये एलेंस रूल के बारे में। तो व्हाट इज दिस एलेंस रूल? ये एलेंस रूल क्या होता है? तो एलेंस रूल का सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है? द होल्डिंग, दिस प्रिंसिपल होल्डिंग दैट इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल स्पीशीज which is having distinct geographic population। तो warm blooded animals आपको पता है जो कि रेगुलेटर्स होते हैं, they are called as the warm blooded animals। ये जब किसी डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल पॉपुलेशन में रह रहे, किसी डिस्टिंक्ट एरिया या डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एरिया में रह रहे, तो यहाँ पर क्या है, इनके जो लिम्स होते हैं, इनके जो ईयर्स होते हैं और जो दूसरे अपेंडेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर शॉर्टर। इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। जबकि जो वही सेम स्पीशीज के एनिमल्स जो दूसरे वार्म क्लाइमेट में रह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में क्या है, ये एनिमल्स का जो अपेंडेजेस हैं, ईयर्स हैं, जो लिम्स हैं, इनका साइज छोटा होता है। जैसे कि अगर हम पोलर बियर की बात हमारे नॉर्मल बियर से करते हैं,
तो नॉर्मल बियर्स के कंपैरिजन में जो पोलर बियर्स हैं या जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो बियर्स हैं, इनके लिम्स हैं, इनके ईयर्स और इनके दूसरे अपेंडेजेस जो होते हैं, दे आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द वार्म क्लाइमेट वाले एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। So this was called as the Allen's rule. इसको हम Allen's rule कहते हैं। Now see over here the polar seals of the polar aquatic seas. ये जो polar aquatic seals होते हैं, seals of the polar aquatic seas, इनमें क्या है, इनकी जो पूरी की पूरी स्किन है, ये पूरी स्किन है, इसकी स्किन के जस्ट नीचे एक मोटी लेयर क्या होती है, फैट की एक मोटी लेयर होती है, विच इज कॉल्ड एज ब्लबर। इस फैट की लेयर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लबर। So this blubber, what is it? Blubber is the thick layer of fat which is found below the skin of the polar aquatic seals. जो polar aquatic seals होती हैं, उनके स्किन के नीचे एक थिक फैट लेयर होती है, और यही जो फैट की लेयर होती है, इट एक्ट्स एज द इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, और बॉडी के अंदर की जो हीट होती है उसको लॉस नहीं होने देती है। So we can say that this blubber, it reduces the loss of the body heat. Body heat के जो loss है उसको reduce करने का काम ये करते हैं। ठीक, now see the next thing what we will see over here, the adaptation in the high altitude. High altitude का हम adaptation यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, so let us see the adaptation in the high altitude. अब अगर हम जैसे कि नीचे रहते हैं, लो लाइन एरियाज में रहते हैं, एंड व्हेन वी मूव टू द हाई एल्टीट्यूड, अगर कोई व्यक्ति जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचे पहाड़ों पे जिसकी की ऊंचाई ग्रेटर देन 3500 मीटर्स है, वो अगर उतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो दे डेवलप, व्हाट डू दे डेवलप, दे डेवलप एन अल्टीट्यूड सिकनेस। वो एक अल्टीट्यूड सिकनेस या जो ऊंचाई से होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड सिकनेस होती है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कई बार हम भी काफी पहाड़ों पर अगर घूमने वगैरह जाते हैं तो कई लोगों को क्या होता है, जी घबराता है, थकान होती है, और हार्ट में पैल्पिटेशन, दिल ज्यादा तेज धड़कने लगता है। तो दीज आर द सिम्टम्स विच आर डेवलप्ड बाय द एल्टीट्यूड सिकनेस। और ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इनफ ऑक्सीजन जब बॉडी को नहीं मिलेगी तो जी घबराने लगता है, थकान महसूस होती है, और हार्ट ज्यादा तेज धड़कने लगता है। तो these all symptoms they are called as altitude sickness. इसको हम क्या कहते हैं, altitude sickness कहते हैं। Now let us see the next part of this, that is how the bodies they solve the problem of this altitude sickness. ये altitude sickness की जो है प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बॉडी जो है वो सॉल्व करती है। तो क्या होता है यहाँ पर कि द बॉडी कंपनसेट द लो ऑक्सीजन, जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो वहीं पर रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी बढ़ेगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। And the body compensate the decreasing binding capacity of hemoglobin with the oxygen by increasing rate of breathing. और कई बार ये बॉडी किस तरीके से और कंपनसेट करता है, अगर हीमोग्लोबिन का डिक्रीजिंग रेट है, बाइंडिंग कैपेसिटी का अगर यह हीमोग्लोबिन कम है, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम इंक्रीज हो जाएगा ब्रीदिंग रेट। तो बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो जब ज्यादा हम ब्रीथ करेंगे तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो दिस आर द डिफरेंट वेज बाय विच द बॉडी सॉल्व्स दिस हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम। Now let us see the behavioral adaptation. अब हम देखेंगे next adaptation, that is called as the behavioral adaptation. इसको हम कहते हैं behavioral adaptation.
तो बिहेवियरल एडाप्टेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने बिहेवियर को ही चेंज कर देते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेट अस सी द डेजर्ट लिजार्ड। जो डेजर्ट लिजार्ड होती है क्या है, दे आर द रेप्टाइल्स, and reptiles say that means they are the conformers, hence they cope up with the stressful environment by the behavioral adaptation। तो ये stressful environment में अपने आप को कोप अप करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ बिहेवियर में चेंजेस ले आते हैं या अपने आप के बिहेवियर में एडेप्टेशन ले आते हैं। तो वेरी फर्स्ट व्हाट दे डू, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इमेज आपको दिखाई दे रही है उस लिजार्ड की जो कि सन में बास्क कर रही है। तो दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब द हीट when their body temperature drops below the comfort zone in winter। मैंने क्या बोला था कि ये कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं यानी कि जैसा कि बाहर का एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही उनके बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो जब विंटर्स होते हैं तो उस समय क्या होता है, कन्फर्मर्स होने के कारण इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर ये बॉडी के टेम्परेचर जो कि ड्रॉप हो गया है उसको रेज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दे बास्क इन द सन, ये धूप सेकते हैं। बास्क इन द सन का मतलब होता है धूप सेकना। तो जब भी सनलाइट होती है तो उस समय ये धूप में बास्क करते हैं, धूप सेकते हैं और क्या करते हैं, सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर जो कि गिरा हुआ है उसको कंफर्ट जोन तक ले आते हैं। या कई बार क्या होता है, दे मूव टू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो जब धूप तेज पड़ती है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, ये शेड की तरफ मूव कर जाते हैं या छांव में चले जाते हैं, तो इनको तेज धूप का असर नहीं होगा। एंड सम स्पीशीज दे आर बरोइंग इनटू द सॉइल। सॉइल के ऊपर या अबाउ द ग्राउंड क्या है, हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो क्या होगा, डेजर्ट की हम बात करें, डेजर्ट में आपको पता है कि रेत पे बहुत ज्यादा गर्म रेत होती है। तो उस हीट से एस्केप करने के लिए कई एनिमल की स्पीशीज जो होती है दे बरो इनटू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर बरो करती हैं और एस्केप करती हैं फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। Now let us see the next part of this chapter, that is the population attributes। ठीक है, next part we will see that is the population attributes। अभी तक हमने organisms के बारे में देखा, अब हम देखेंगे population के बारे में। Now we will study about the population। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि समझिए कि कोई जंगल है और उसमें सारे के सारे, अगर मैं टाइगर्स की बात करूं तो फिर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो एक ही चीजों को शेयर करते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एंड दे पोटेंशियली इंटरब्रीड विद ईच अदर, यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल area which share or compete for similar resources and they potentially interbreed, it is called as population। और दूसरा और कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का क्या है, that is the sex ratio, it is called as the sex ratio। अब sex ratio क्या होता है, the ratio between the male and the female in the population, it is called as the sex ratio। तो फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है किसी पॉपुलेशन में, इट इज कॉल्ड एज द सेक्स रेशियो, उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ दिस पॉपुलेशन, दैट इज if the age distribution is plotted for a population, the resulting structure is called as the age pyramid। अब अगर हम एक एज पिरामिड की बात करते हैं, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं या कोई भी इमेज को प्लॉट करते हैं फॉर एज एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज लाइक अ पिरामिड। और इस तरीके के पिरामिड को जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द एज पिरामिड। अभी इस एज पिरामिड को हम आगे और देखेंगे।
तो द पॉपुलेशन साइज इज मोर, अगर हम बात करते हैं कि किसी एरिया में जो है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है या पॉपुलेशन कम है, तो टेक्निकली उसके लिए जो ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज जो है इट इज मोर टेक्निकली कॉल्ड एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन अ यूनिट एरिया और स्पेस एट अ गिवन टाइम। एक दिए हुए टाइम में जो है किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स द नेटिलिटी और द बर्थ रेट। दूसरा आता है हमारा नेटिलिटी या बर्थ रेट। तो व्हाट इज दिस बर्थ रेट? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स एडेड पर यूनिट पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ, हैचिंग्स एंड जर्मिनेशन। देखिए बर्थ यहाँ पर सिर्फ हम एनिमल्स की ही बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे कितने नए यंग वंस बने, कितने एग्स हैच हुए और कितने सीड्स जर्मिनेट हुए। तो दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट और द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विच इज एडेड इन अ पर यूनिट पॉपुलेशन। एक दिए हुए एरिया में दिए हुए टाइम में कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं ड्यू टू birth, due to hatchings of the eggs and due to the germination of the seed. This is called as the birth rate. इसको हम कहते हैं birth rate. Now what is this mortality rate और the death rate क्या होती है? Now see the death rate जो है it is the average number of the natural death. यहाँ पर क्या है? Natural death जो है per unit time एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उनके डेथ होती है, वो भी नेचुरली, कोई डिजास्टर या कोई कैलेमिटीज के थ्रू डेथ नहीं होना है। यहाँ पर जो है डेथ इट शुड बी द नेचुरल डेथ। सो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द नेचुरल डेथ पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। देखिए एक एरिया और टाइम का होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज द डेथ रेट और द मोर्टेलिटी रेट। उसको हम डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट और द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इट इज आई माइग्रेशन। देखिए मैं इसको आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन बोल रही हूँ जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाएगी। IMMIGRATION, आई मतलब अंदर आना, तो इट इज द परमानेंट इनवर्ड। किसी पॉपुलेशन में कोई बाहर से इंडिविजुअल आकर ऐड हो रहे हैं इन द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज आई माइग्रेशन। ठीक है, उसको हम आई माइग्रेशन कहते हैं। दैट इज द परमानेंट इनवर्ड कमिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज द इमिग्रेशन, दैट इज द परमानेंट आउटवर्ड। ठीक है, ई से एग्जिट होता है, तो परमानेंट एग्जिट और द परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर सेटलिंग इनटू द न्यू एरिया। जैसे इंडिया से कुछ लोग जाकर फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। एंड this is the permanent outward movement of the individuals from a given population into the new area. So we have studied the natality rate or the birth rate, then the immigration, then immigration. Now let us see the population growth. Population growth के लिए हम यहाँ पर एक curve भी देखेंगे. This is an again an important part of this chapter. इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए. Let us see the population growth. अब कोई भी पॉपुलेशन जो है उसकी साइज जो है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉपुलेशन कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम ना, टाइम के साथ साथ ये चेंज होती है। और इस पॉपुलेशन को चेंज होने के लिए क्या है, कुछ फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल। द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द changing of the population, that is food availability, weather, predator pressure and competition. फूड अवेलेबिलिटी देखिए, अगर एक प्रॉपरली फूड जो है किसी पॉपुलेशन में मिलता रहेगा
तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो करेगी। और अगर वेदर भी सुटेबल है तो भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। जहां पर वेदर जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं करेगी। So in this way we say that the food availability and whether they are the main factors which on which the population growth it depends, and the predator pressure। ऐसा नहीं हो कि कई सारे शिकारी आ गए और वहां के ऑर्गेनिज्म को किल करने लग गए, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रीडेटर प्रेशर। और फिर इससे क्या होगा, वहां के ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म होने लगेंगे, तो इस तरीके से वहां की पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज द प्रीडेटर प्रेशर। देन कम्स द कंपटीशन। एकदम से क्या हो जाए कि कोई एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एकदम से वो बढ़ जाते हैं अगर, तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन शुरू होगा तो जो ज्यादा सुपीरियर होगा वो जिंदा रह जाएगा, जो इंफीरियर वाला होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इसके कारण भी क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होगी। So now we can see that the density of the population, density of the population का क्या मतलब था, density of the population का मतलब था the size of the population or the number of the individual which are present in the population, it is called as the density of the population. So the density of the population in a given habitat during a given period, ना ये चीज आपको बोलना है कि the density of a population in a given habitat during a given period, एक दिए हुए पीरियड में, एक दिए हुए एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, तो इसमें चार मेन बेसिक प्रोसेसेस के कारण चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज द नेटेलिटी, सेकंड इज मोर्टेलिटी, थर्ड इज आइमाइग्रेशन एंड फोर्थ इज इमिग्रेशन। ओके, ये जो चार प्रोसेसेस हैं इनके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो लेट अस सी ओवर हियर, यू कैन सी यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी n, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n से डिनोट कर रहे हैं। एंड अब देखिए प्लस प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी किसके कारण, आई माइग्रेशन के कारण और बर्थ के कारण। तो नेटेलिटी और आई माइग्रेशन क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू आई माइग्रेशन एंड द नेटेलिटी। और उसके बाद कम कैसे होगी, या पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी रेट। तो डेथ होगी किसी पॉपुलेशन में और वहां के इंडिविजुअल्स परमानेंटली किसी दूसरे एरिया में चले जाएंगे, दूसरे एरिया में जाके सेटल हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इट विल बिकम लेस। So these are the four factors on which a population density it is affected. Now let us see this more thing. अब यहाँ पर ये चीज और ये फॉर्मूले जो है आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो while the natality and the immigration they contribute to an increase in the size of the density, and the mortality and the immigration it contribute to the decrease in the population density. तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इक्वेशन बनेगा, देखिए अब यहाँ पर जो आपको लर्न करना है, कोई मैथमेटिक्स इसमें यहाँ पर नहीं आ रही है, आपको सिर्फ ये वाला जो है इक्वेशन इसको लर्न करना है ना। और इसमें जो टर्म्स यूज की है दैट यू शुड नो व्हाट इट इज। So the equation for the population growth it is nt plus 1. nt क्या है, nt it is the population density after time t। एक दिए हुए टाइम t के बाद जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, दैट इज nt। फिर वो एक साल बाद अगर हम देखते हैं तो इट बिकम्स t plus 1। तो उसमें क्या होगा, जो पहले की डेंसिटी है दैट इज nt, इसमें क्या होगा, बर्थ और आइमाइग्रेशन प्लस हो जाएगा और डेथ और इमाइग्रेशन क्या होगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो दैट विल बी द इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज nt प्लस 1। nt क्या है, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। और nt ये जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है पहले वाली, उसमें नई अगर हमको पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है, एक साल बाद हमको उस पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना है। समझिए कि अभी मैं बात कर रही हूँ कि लास्ट ईयर 1000 थी, इस पूरे साल क्या होगा, कितने बर्थ हुए हैं,
समझिए कि वो हो गए 100, तो 1000 प्लस 100 ऐड हो जाएगा, 1100 हो गई, प्लस आई माइग्रेशन, उसमें 100 और बाहर से आए तो वो कितने हो गए, 100 और बाहर से आए तो 1200 पहले थे और 100 आ गए, तो इट बिकेम 1300, माइनस समझिए उसमें कि 300 डेथ हो गई 1000 और 100 उसमें बाहर चले गए तो 1000 माइनस 100 दैट विल बी 900। तो इस तरीके से nt+1 जो है इट विल बिकम 900। अब यहाँ पर एक और r भी आएगा आपको आगे वाले इक्वेशन में। व्हाट इज r? r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचुरली जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है बाय बर्थ एंड जो डेथ को माइनस करके, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो है, दो तरह के ग्रोथ मॉडल यहाँ पर होंगे। So there are two types of growth model over here. One is called as the exponential growth model and the other one is called as the logistic growth model. तो दो तरह के growth model आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। Very first we will see the exponential growth model. तो exponential growth model यानी कि वो population density exponentially कब grow करती है? So when the resource availability it is unlimited in the habitat, the population it grows in an exponential or the geometric fashion. तो जब किसी हैबिटेट में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है वहां पर रिसोर्सेस की, तो क्या होगा, ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या है यहाँ पर ग्रोथ मॉडल जो बनेगा, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दैट विल बी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब बनेगा? व्हेन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी इट इज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, तो वो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करेगी। और जब एक्सपोनेंशियली कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये जो बन रहा है, ये जे शेप का कर्व है। This is when the responses are not limiting and the plot is exponential and the resources they are unlimited. तो इस तरीके का जे शेप का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा क्या है आपका, देखिए ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, जहां पर की बोला जाता है कि हर इन्वायरमेंट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। उस कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक समय के बाद भले ही रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल हो, हर एक इन्वायरमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक लिमिटेड हो जाती है। सो व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, ठीक है, तो दैट प्लॉट इट इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है ओवर हियर, यू कैन सी द इक्वेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ जो मेन इसके इक्वेशंस जो बन रहे हैं दैट यू हैव टू लर्न। तो द इक्वेशन इज dn by dt इट इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n। dn by dt क्या है? रेट ऑफ दिस पॉपुलेशन डेंसिटी। रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई यहाँ पर? तो n क्या है? इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। और r क्या है यहाँ पर? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k इज द कैरिंग कैपेसिटी। ये सब चीजें अच्छे से याद करिए। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या हो रहा है, b माइनस डी इट इज इक्वल टू r। b क्या है? बर्थ रेट, और d क्या है? डेथ रेट। यही मैंने बोला नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इंट्रिंसिक, है ना, तो दैट इज डिनोटेड बाय r। उसको हम r से डिनोट कर रहे थे। r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचुरली जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो कैसे इंक्रीज होगी? नॉर्मली जो बर्थ होंगे, नेचुरली जो बर्थ होंगे, नेचुरली जो डेथ होगी, वही जो है इट विल फॉर्म द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि dn by dt इट इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा? तो b माइनस डी को हमने बोला दैट इज इक्वल टू r,
है ना। तो यहाँ पर हम b माइनस डी की जगह पर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी किस तरीके से हो जाएगी, dn by dt it is equal to rn. This will be the equation for the exponential growth curve. So we can say that when the population it grows exponentially, the curve plotted with n यानी कि population density in relation to time t, टाइम के साथ, तो इस तरीके का जो कर्व बनेगा that will have a J shaped curve. वो कर्व कैसा हो जाएगा, J शेप का हो जाएगा। तो यहाँ पर n क्या है, that is the population density at time t, b is the birth rate, d is the death rate and r is the intrinsic rate of natural increase. अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, अब आगे की इक्वेशन में आएगा that k, यहाँ पर एक नया टर्म यूज होगा, that k is the carrying capacity of that environment. अब देखिए नेक्स्ट कर्व वी विल सी दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो कोई भी पॉपुलेशन जो है दे कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एज द रिसोर्स अवेलेबिलिटी दे बिकम लिमिटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई भी ये जो है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, इसको सही माना गया है क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पर आके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड जरूर हो जाएंगे। तो इट इज डिस्क्राइब्ड, अब इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को जो है यहाँ पर, अब देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के और आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के इक्वेशन को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। आइडेंटिफाई करने को भी कर्व आ जाता है, ये कर्व आपको जो है मैंने आपको बताया उसकी इमेज दे देते हैं और आपको पहचानने को बोलते हैं किस तरीके का ग्रोथ कर्व है और ऐसी कंडीशंस कब होंगी। तो यू हैव टू बी थॉरो विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में वो बनेगी dn by dt इट इज इक्वल टू rn। r क्या था हमारा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इनटू n दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन टाइम, k minus n, k क्या है कैरिंग कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय k दैट इज अगेन द कैरिंग कैपेसिटी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए इक्वेशन है। So you can see over here both type of growth models, the exponential or the unrestricted growth model and logistic or the restricted growth model। यहाँ पर आप देखिए कि ये बोल रहे हैं कि टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे, क्योंकि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या कह रहा है कि जो है कि कोई भी एनवायरमेंट जो है उसमें रिसोर्सेज किसी न किसी पॉइंट पर आकर लिमिटेड हो जाते हैं, जब क्या होता है कि पूरा जो ग्रोथ का, जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ का साइज है, इट रेट जो है उसका जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। और एक पॉइंट पे तो ये मैक्सिमम था, यहाँ पर दिस वाज द मैक्सिमम पॉइंट जहां पर की पॉपुलेशन साइज है एक्सीलरेट करती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। यहाँ पर क्या होगा कि जो है रिसोर्सेज दे विल बी limited or at a certain point and the rate of the population size it will slow down. That point it is called as the carrying capacity. Hope you understood this point. Now let us see the population attributes. ये हमने अभी देखा population attributes को कि population attributes कौन कौन से थे, birth rate था, death rate था, sex ratio and population density. These all were the population attributes. और population जो है at a given एक दिए हुए टाइम पे जो population होती है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है। मैंने जो आपको पिछले 2-3 स्लाइड पहले बोला था वो एज ग्रुप जो है उससे अगर हम स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं तो वो हमको एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को देखते हैं किसी एक पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स से मिलकर बनी होती है और ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स।
तो एज ग्रुप्स कौन से हैं? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव में आपके बच्चे आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव में एडल्ट आ जाते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ओल्ड एज वाले जो है इंडिविजुअल्स वो आते हैं। तो इस तरीके से एक आपको पता है हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। तो 3 तरह के इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन में एक समय पर प्रेजेंट होते हैं। So if the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is the age pyramid. तो इस तरीके से अगर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई स्ट्रक्चर प्लॉट करती हूँ किसी पॉपुलेशन में, तो मुझे जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो एक पिरामिड के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमको क्या है कि एज पिरामिड जो है वहां पर हम मेल्स और फीमेल्स दोनों का कंबाइंड डायग्राम यहाँ पर लेते हैं। So the shape of the age pyramids, it reflects the growth status. तो पिरामिड जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोथ स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है कि जो वो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपांडिंग है या ग्रोइंग है या स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन स्टेबल है, वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, या डिक्लाइनिंग है का मतलब है कि पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इस तरीके से जो है उस पिरामिड से हमको डिफरेंट एज ग्रुप से पता पड़ता है कि वो पॉपुलेशन किस तरीके की पॉपुलेशन है। यू कैन सी ओवर हियर दिस आर द 3 different representations of the age pyramids of the human population, जिसमें कि मेल और फीमेल को दोनों को ही कंबाइंड पिरामिड में लिया गया है। तो आप ये नीचे जो येलो वाला है यू कैन सी दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ये तीनों तरह के आपको जो पिरामिड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार इसकी इमेज दे देते हैं और आपको बोला जाता है कि इसको आप लेबल करिए कि ये किस तरीके का पिरामिड है। तो एक्सपांडिंग पिरामिड में आप देखिए कि प्री रिप्रोडक्टिव जहां पर कि बच्चों का नंबर ज्यादा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा होगा, तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है दैट इज द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यही बच्चे जो है आगे जाके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाएंगे और पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ एज पिरामिड इट इज कॉल्ड एज द एक्सपांडिंग एज पिरामिड where the pre-reproductive age group individuals they are more. Then comes the stable. स्टेबल में क्या होगा? आपका प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर होंगे। तो रिप्रोडक्टिव ने रिप्रोड्यूस कर दिया और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले आए वो ही सेम नंबर के हैं, तो वो पॉपुलेशन में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दैट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इन विच द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज एंड द number of the individuals of the pre-reproductive age it is equal, so that type of pyramid it is called as the stable human population pyramid. Then comes the declining pyramid. डिक्लाइनिंग पिरामिड में आप देखिए क्या हो रहा है। डिक्लाइनिंग पिरामिड में आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं उनका नंबर जो है वो रिप्रोडक्टिव वाले से कम है। So the number of the individual of the pre-reproductive age group it is less than the reproductive age group. तो इस तरीके से 3 पिरामिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। So this is called as the age pyramid for the human population. It is also an important part of this chapter. इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। Now next attribute हमने देखा था कि population जो है किस तरीके से affected होती है, that is the next is the competition. तो what is competition? Competition can be defined as the rivalry between two or more organisms for obtaining the same resources. अब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब राइवलरी होती है, उनके बीच में लड़ाई होती है, कंपटीशन होती है किसी एक चीज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन। So what is competition? Competition it can be defined as rivalry, ना दुश्मनी between two organisms for obtaining the same resources, या एक ही खाने को या शेल्टर के लिए या रैंक के लिए या मेटिंग के लिए। तो ये कंपटीशन किन किन रीजन से होता है ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कंपटीशन जो है इट इज बिटवीन द सेम स्पीशीज, है ना। अब क्यों होता है?
फॉर द सेम बेसिक रिसोर्सेज। अब सेम स्पीशीज होंगी तो उनके रिसोर्सेज भी सेम होंगे, सेम रिसोर्सेज यानी कि वो फूड भी एक जैसे ही खाएंगे, रहेंगे भी एक ही जैसी जगह पर, एंड एक्सेट्रा मेंबर्स ऑफ द एनिमल स्पीशीज। आप देखिए कि कई एनिमल्स में रैंकिंग के लिए भी कंपटीशन होता है कि कौन मेन बॉस बनेगा उसमें, है ना। तो और साथ में मेटिंग के लिए भी लड़ाइयां होती हैं। So this type of rivalry action it is called as competition ना। मेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन के समय भी फीमेल के लिए भी वहां पर लड़ाई होती है। और कौन मेन हेड बनेगा, दैट इज द कंपटीशन फॉर रैंकिंग। So these all are the different ways in which the organism they fight with each other। और फिर जीत उसकी होती है जो कि ज्यादा सुपीरियर होता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको डार्विन की लॉस पता है, तो वहां पर भी कंपटीशन जो था जिसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है या अफेक्टेड हो रही है। नाउ अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये कंपटीशन की हम बात कर रहे थे, इसमें आप देखते हैं कि प्लांट्स जो है दे आल्सो एग्जिबिट द कंपटीशन। प्लांट्स भी कंपटीशन को एग्जिबिट करते हैं फॉर व्हाट। आप देखिए, आप इकट्ठे बहुत सारे चने एक जमीन पे डाल दीजिए एक छोटे से एरिया में, फिर आप देखते सारे के सारे चने के जो सीड्स हैं दे जर्मिनेट। और लेकिन क्या वो सारे ही प्लांट्स पूरे के पूरे बड़े होके चने के पेड़ बन जाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ कुछ ही उसमें से ग्रो कर पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो जाते हैं एंड देयर इज अ कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स फॉर लाइट एंड स्पेस। और बाद में सिर्फ वही ग्रो फास्ट कर पाते हैं जो कि अपने आप को वहां पर स्टैब्लिश कर लेते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, दे इवेंचुअली डिसअपियर। So we can say that the plants they also exhibit competition for space, for light, water and nutrients। इसके लिए इसमें competition होता है। Then intra-specific competition। इंट्रा और इंटर का मतलब समझिए, इंट्रा का मतलब है सेम स्पीशीज के बीच में, इंटर का मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज के बीच में। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होना जरूरी भी है, क्योंकि जब एक ही स्पीशीज में आपस में कंपटीशन होगा तभी क्या होगा कि वो पॉपुलेशन साइज को बैलेंस कर पाएंगे, और वहां उस हैबिटेट या जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां की रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तो रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी उस हैबिटेट में, इसीलिए आपस में ही वो कंपटीशन करके अपनी पॉपुलेशन की जो साइज है उसको बैलेंस या उसको मेंटेन कर कर रखते हैं। सो दिस वाज कंपटीशन। Now next is competition release। देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको समझना ही काफी है, इसके एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज दिस कंपटीशन रिलीज? ये कंपटीशन रिलीज क्या होता है? नाउ लेट अस सी दिस। अ स्पीशीज whose distribution is restricted to a small geographical area। ऐसी कोई स्पीशीज जो किसी एक छोटे से geographical एरिया में ही restricted है, दूसरी जगह पर ये स्पीशीज नहीं मिलती। That means we can say a species whose distribution it is restricted to a small geographical area। किसी स्पेसिफिक geographical एरिया में ही कोई स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है अगर, तो क्या होगा कि वहां पर समझिए कि कोई सुपीरियर स्पीशीज उस जगह पर अगर आ जाती है तो उसके कारण क्या होगा कि वो जो इंफीरियर स्पीशीज है वो ड्रामेटिकली वहां से चली जाएगी, वहां से खत्म हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन के कारण एक स्पीशीज जो है वो रिलीज हो गई, वहां से खत्म हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो यहाँ पर कॉर्नेल्स ने एक एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया कि सुपीरियर बार्नाकल्स, बार्नाकल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे शंख जैसे होते हैं, सी में रहने वाले एनिमल्स हैं ये, जो कि ज्यादा करके हम देखते हैं कि बड़े बड़े रॉक्स हैं उससे चिपके होते हैं, या जो वेल होती है उसकी स्किन से भी ये चिपके हुए होते हैं। तो जो सुपीरियर बार्नाकल्स, बैलेनस ना, बैलेनस उसका नाम है, ये सुपीरियर वाले जो हैं दे डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया। ये जो है समुद्र के जो इंटरटाइडल एरिया है वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पर ये अच्छे से प्रेजेंट है। और उन्होंने क्या किया है, वहां पर ही रहने वाले जो छोटे बैर्नाकल्स हैं, थैलेमस फ्रॉम दैट जोन, उनको क्या किया, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, उनको वहां से खत्म कर दिया है।
ठीक है। So this was an Cornell's elegant field experiment which showed that the superior barnacle balanus they dominate the intertidal area, और उन्होंने वहां पर जो रहने वाले छोटे बर्नाकल हैं थैमेलस, उनको उस जोन से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव रिलीज। नाउ एक और है गॉस का ही ये कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज cannot coexist indefinitely and the competitively inferior will be eliminated eventually। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये अब अगला है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब गॉस ने भी ऐसा ही एक कंपटीशन एक्सक्लूजन मतलब कि एक्सक्लूड कर देना, वहां से हटा देना कंपटीशन के कारण, उन्होंने भी एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या बोला कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कोई दो स्पीशीज जो कि बहुत ज्यादा एक जैसी हैं, है ना, वो क्या करती है, सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं, तो वो एक साथ जो है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है वो धीरे से वहां से एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। So this was Gauss's competitive exclusion principle. Now next we are seeing the resource partitioning. रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या हो रहा है कि दो स्पीशीज जो हैं ये भी आपस में क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, बट दे कुड अवॉइड कंपटीशन। अब ये थोड़े से शांति प्रिय हो गए, इन्होंने कहा कि हम कंपटीशन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो फॉर व्हाट दे डू, ये क्या करेंगे, ये अपना डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न कर लेंगे। ये क्या करेंगे, जो सर्च फॉर फूड, फोरेजिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, फोरेजिंग का मतलब होता है सर्च फॉर फूड, तो ये अपने खाने ढूंढने जाने का जो टाइम है उसको ये चेंज कर लेंगी, इकट्ठे एक साथ नहीं जाएंगी, टू अवॉइड कंपटीशन। तो यहाँ पर ही एक मार्क आर्थर ने एक एग्जाम्पल शो किया है दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स। वार्बलर्स क्या होती हैं, द बर्ड्स दैट वार्बल्स और सिंग इन अ वेरी जेंटल मैनर। ठीक है, वार्बलर्स वो बर्ड होती हैं जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से गाना गाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द वार्बलर्स। तो 5 ऐसी वार्बलर्स की क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि एक ही ट्री पे रहती हैं, उन्होंने क्या किया, दे अवॉइडेड कंपटीशन एंड दे स्टार्टेड कोएग्जिस्टिंग। तो एक दूसरे से उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया और कोएग्जिस्ट भी कर रही हैं, एक के साथ एक जिंदा भी हैं, क्योंकि what they have done, they have changed their behavioral differences in their foraging activities, that is the searching for food की activities और behavior को उन्होंने चेंज कर दिया है, जिससे कि दोनों ही जो स्पीशीज हैं वो को एग्जिस्टिंग कर रही हैं। जैसे कि गॉसेस कंपटीशन एक्सक्लूजिंग में क्या बोला था उन्होंने बोला कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होंगी वो एक ही जगह पर रहेंगी, कंपटीशन को अवॉइड करेंगी और को एग्जिस्ट करेंगी अपने फोरेजिंग एक्टिविटीज को चेंज करके। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर कंपटीशन। ये कंपटीशन के आपके एग्जांपल्स होते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल which is also affecting the population, that is parasitism। अगला क्या है आपका parasitism। ये यहाँ सब इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो ऑर्गेनिज्म व्यतीत करते हैं उनमें किस तरीके का एडेप्टेशन होता है ये भी हमको देखना है। तो वेरी फर्स्ट वी शुड सी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इट इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। फ्री लॉजिंग एंड मील्स मतलब फ्री का रहना और फ्री का खाना, ये पैरासाइट्स करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल। तो सम पैरासाइट्स दे आर होस्ट स्पेसिफिक। तो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो कि किसी एक ही सिंगल होस्ट में रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो पैरासाइट तभी जिंदा रहेगा जब वो होस्ट जिंदा रहेगा। तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज को-इवोल्यूशन। अगर होस्ट मर गया तो वो पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दैट पैरासाइट इट इज होस्ट स्पेसिफिक, उसको वही होस्ट चाहिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए।
So this is called as co-evolution. Now comes parasitic adaptation. पैरासिटिक एडाप्टेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासिटिक लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी बॉडी में किस तरीके का एडाप्टेशन होता है। तो सबसे पहला कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसमें नहीं होते क्योंकि उनको कुछ देखना सुनना नहीं है, ना कोई फूड को सर्च करना है, तो उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसका लॉस होता है। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। Then presence of adhesive organs or the suckers to cling onto the host. होस्ट की बॉडी से उनको चिपक के रहना है, उससे उसको ब्लड को सक करना है, तो इसके लिए उनमें एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स का होना जरूरी है जिससे कि वो होस्ट को क्लिंग करके रह सके, होस्ट को अटैच रह सके और होस्ट से वो डाइजेस्टेड फूड जो है उसको सक कर रहे हैं या उसी को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए इनको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। और साथ में दे हैव अ हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एक साथ मिलियंस ऑफ प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड पैरासाइट्स हैविंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स, कई बार पैरासाइट जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा होस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे लीवर फ्लूक का ही हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो उसमें 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, द स्नेल एंड अ फिश, और तभी जाके इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो द 2 intermediate hosts for the liver fluke, it is snail and the fish. These are the 2 intermediate hosts to complete the life cycle of the liver fluke. तो इस तरीके से liver fluke की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 जो हैं इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत पड़ती है। Now let us see the effect on the host. होस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी पैरासाइट का। तो इफेक्ट ऑन द होस्ट लेट अस सी। तो पैरासाइट इट ऑलवेज हार्म्स द होस्ट, पैरासाइट हमेशा ही होस्ट को हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। कभी भी कोई पैरासाइट किसी होस्ट के लिए फायदेमंद नहीं होता। यहाँ पीछे आप इमेज देख सकते हैं कि एक हरे भरे पेड़ के ऊपर किस तरीके से अमरबेल अपना पूरी तरीके से फैल चुका है और धीरे धीरे उस होस्ट को वो खत्म कर देता है और इसके कारण इट रिड्यूसेस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, उस होस्ट को खत्म कर देगा तो होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड एंड दे मेक द होस्ट मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। वो आपको पता है अगर किसी एनिमल के ऊपर, किसी डॉग के ऊपर या किसी बर्ड के ऊपर बहुत सारे कीड़े अगर लग गए हैं या कोई उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स आ गए हैं तो क्या होगा, वो बहुत वीक हो जाएगा। वो जो होस्ट है दैट विल बी वेरी वीक, वो फिजिकली वीक हो जाएगा और इट विल बी मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स, यानी कि उसको दूसरे शिकार जो हैं इजीली उसको खत्म कर देंगे। सो हियर वी से दैट दे मेक द होस्ट मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स by making it physically weak. Now let us see this parasites. They are of 2 types, the ectoparasites and the endoparasites. तो वो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्टोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग के जो बालों में लाइस प्रेजेंट होते हैं, जो जूं जिसको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ लाइस विच आर प्रेजेंट ऑन द हेयर, ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टिक्स ऑन द डॉग्स, डॉग्स के भी हेयर्स में हम देखते हैं कि कीड़े लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ टिक्स, तो ये भी उसके एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कस्क्यूटा, अमरबेल जो है, इट इज अ पैरासिटिक प्लांट विच ग्रो ऑन द हेज प्लांट्स, जो कि हेज प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो है parasites, they are of 2 types, ectoparasite and the endoparasite. Now let us see the endoparasite. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक्टोपैरासाइट का ही एग्जांपल में आप देखिए, इस बर्ड के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट, ये कीड़े जो हैं ये लगे हुए हैं। इस तरीके के कीड़े जो हैं डॉग्स पे भी लगे हुए होते हैं। धीरे धीरे देखिए ये इस एनिमल को क्या करेगा, मोर वीक कर देगा और मोर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स, ये कमजोर हो जाएगा तो इसको कोई भी शिकारी जो है इजीली खत्म कर देगा। Now let us see the endoparasite. अब हम देखते हैं endoparasite. तो endoparasites are those that live inside the host of the body at different sites.
डिफरेंट साइड्स मतलब कि बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जो है एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये सिंपल नहीं होती है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड जो इनका मॉर्फोलॉजिकल और जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर खुद का होता है इन ऑर्गेनिज्म का, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है। एंड अगेन दे हैव हाई डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी पैरासाइट अगर होगा तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। Now, one more a typical type of parasitism that I am going to tell you, that is the brood parasitism. ये ब्रूड पैरासिटिज्म एकदम डिफरेंट टाइप का पैरासिटिज्म है जो कि एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म है विच इज फाउंड इन बर्ड्स, जो बर्ड्स में मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कि पैरासिटिक बर्ड्स होती है दे ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट टू इंक्यूबेट दैम। अब होस्ट का जो एग होते हैं और जो पैरासिटिक बर्ड होती है उसके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे कि जो कक्कू होती है वो क्रो के नेस्ट के अंदर अपने एग्स को ले करता है, क्योंकि कक्कू के जो एग्स हैं और क्रो के जो एग्स होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो क्या हो रहा है, कक्कू क्या हो गया, यहाँ पर पैरासाइट हो गया, क्रो क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो क्रो क्या करेगा, उनको अपने ही एग समझकर उनके एग्स को इंक्यूबेट करेगा, उसको फिर वहां कक्कू एग्स को लेकर के बाद फिर वापस नहीं आती है। तो इन दिस वे अ क्रो जो है इट हैचेस द एग्स ऑफ द कक्कू। So this type of special parasitism it is called as the brood parasitism. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रो जो है ये दोनों एग्स हैं, यहाँ पर होस्ट का एग और ये आपके कक्कू का एग, इस तरीके से जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रो को इतना समझ में नहीं आता है the difference between all the eggs, and it incubates the egg of its own eggs as well as the eggs of the cuckoo also. ठीक है, so this is an example of brood parasitism. Now let us see one more interaction that is called as commensalism. अब commensalism क्या होता है ये देखिए, this is the interaction in which one species benefits and the other is neither benefited nor harmed. इस तरीके के इंटरेक्शन में क्या होता है, एक स्पीशीज को तो फायदा होता है और दूसरे स्पीशीज को ना ही फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। तो ये एक तरह का इंटरेक्शन होता है। आप देख सकते हैं ऑर्किड्स जो होते हैं, मैंगो की ब्रांच, अब बड़े मैंगो का पेड़ देख लीजिए या बरगद का पेड़ देख लीजिए, उसमें कई सारे दूसरे प्लांट भी उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उससे क्या है, उस प्लांट को तो फायदा हो रहा है, रहने के लिए शेल्टर मिल गया, लेकिन मैंगो ट्री को नहीं कोई फायदा हो रहा है, नहीं कोई नुकसान हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इट इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप यहाँ पर पीछे इमेज देख सकते हैं, क्लाउन फिशेस एमंग द टेंटेकल्स ऑफ द सी एनीमोन। सी एनीमोन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, आपके सिलेंट्रेटा फाइलम का ये ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या करता है, इसका एक छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं टेंटिकल्स के बीच में क्या है कि ये क्लाउन फिशेस है, जो आपको कलर्ड फिशेस दिखाई दे रही है, ये वहां पर रहती हैं। ठीक है, तो ये क्लाउन फिशेस जो हैं ये इनके बीच बीच में टेंटिकल्स के बीच में जो भी फूड अवेलेबिलिटी होती है उसको ये खाते हैं और सी एनिमोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज द बार्नाकल्स ऑन द बैक ऑफ द वेल्स। जो बड़ी बड़ी वेल मछली होती है इसका साइज काफी बड़ा होता है, इनके जो बैक होती है उस पे ये बैरनेकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको कॉम्पिटिटिव रिलीज में भी इस बैरनेकल्स के बारे में बताया था। तो ये आराम से उसकी स्किन से लगे हुए प्रेजेंट होते हैं, इससे वेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैरनेकल्स को फ्री की राइड मिल जाती है फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड। देन कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल। आपने देखा होगा कई बार घास के मैदानों में या कुछ गीली दलदली जगह पे कुछ कैटल्स जो है वो ग्रेज करते रहते हैं, उनके ऊपर सफेद रंग की जो बगुले टाइप के बर्ड्स बैठे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कैटल इग्रेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रेजिंग कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर आकर वो कैटल इग्रेट बैठा है, लेकिन कैटल इग्रेट को क्या फायदा हो रहा है, जब ये कैटल ग्रेजिंग करते हैं तो ये तो घास खा रही हैं, तो ये जब घास खा रही है तो इनके ये जब चल रही हैं तो वो घास से क्या हो रहा है कि जो छुपे हुए कीड़े थे वो बाहर निकल रहे हैं। द इंसेक्ट्स दे आर कमिंग आउट विच आर हिडन इनसाइड दोज ग्रास, और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं बाय द वॉकिंग ऑफ द कैटल। तो ये इंसेक्ट्स जो हैं ये कैटल इग्रेट्स उनको खाती हैं।
तो इन दिस वे द कैटल इग्रेट्स दे आर बेनिफिटेड एंड ग्रेजिंग कैटल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इट इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड. दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म. Now next example it is mutualism. Mutualism क्या होता है? Mutualism में आपको पता है it is the interaction between two living organisms in which both are equally benefited, no one is harmed. दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होता है, दोनों को ही फायदा होता है. तो ये इंटरेक्शन जो है इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का आपको पता है एग्जांपल, आपको लाइकेन के बारे में पता होगा. लाइकेन इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म. इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंगी. तो फंगी क्या है? दैट इज द माइक्रोबायोन्ट. और एल्गी क्या है? दैट इज द फाइकोबायोन्ट. तो फाइकोबायोन्ट इज द एल्गी एंड माइक्रोबायोन्ट इट इज द फंगी. इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. दैट इज और इनसे जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन. उसी को हम लाइकेन कहते हैं. तो लाइकेन में दो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, द माइक्रोबायोन्ट एंड द फाइकोबायोन्ट, दैट इज द एल्गी एंड द फंगी. Then the next example of this mutualism it is mycorrhiza. Mycorrhiza के बारे में भी आपने सुना है. It is the relationship between the fungi and the root of the higher plants. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. उनकी रूट्स में क्या होता है? फंगी प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ये फंगी क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स जो होती हैं उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है टू द फंगी. तो बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड एंड नो वन इज हार्म. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. देन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को क्या होता है? उससे नेक्टर मिलता है, पोलन मिलता है, और उसके बाद फ्लावर जो है वो पॉलिनेटेड हो जाता है बाय दिस इंसेक्ट. तो दिस इज अगेन बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड. देन वन मोर एग्जांपल, फिग ट्रीज एंड द वेस्प. ये वेस्प क्या करता है? इस फिग के ट्रीज में इसको पॉलिनेट करता है, और साथ में इसको ओविपोजिशन, ये वेस्प जो है इस के ओवरी के अंदर जाकर अपने एग्स को ले करता है. इस तरीके से बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म. नाउ वन मोर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल डिसीट. व्हाट इज द सेक्सुअल डिसीट? सेक्सुअल डिसीट में क्या होता है? पेटल ऑफ द फीमेल फ्लावर रिजेंबल्स द फीमेल बी. है ना. एक फ्लावर जो है, कौन सा फ्लावर? मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरिस. यहाँ पर क्या है कि ये जो है फ्लावर का जो पेटल होता है ये एक फीमेल बी के जैसे दिखाई देता है. तो मेल बी जो है उस फ्लावर को देख के अट्रैक्टेड हो जाता है. इट सीम्स दैट व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल. वो उस फ्लावर के पेटल को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इट इज अ फीमेल. लेकिन क्या होता है? इट इज नॉट अ फीमेल बी बट इट इज द पेटल ऑफ द फ्लावर. तो वो उसके साथ क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन कर लेता है विद द फ्लावर बट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट. तो वो एक झूठे तरीके का कॉपुलेशन होता है विद द फीमेल. तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्लावर को इससे सॉरी उस बी को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है. So this is called as a sexual deceit. ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फीमेल फ्लावर, ये फीमेल बी को रिजेंबल कर रहा है. ये एक पेटल है. दिस इज द पेटल ऑफ दिस मेडिटेरियन ऑर्किड. ये लाइकेन है. ये फिग ट्री है. देखिए ये इंसेक्ट इस पे लगे हुए हैं. यहाँ पर एग को ले करेंगे इनसाइड द ओवरी. और ये माइकोराइजा है. रूट्स पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फंगस का एसोसिएशन है यहाँ पर. So students, this was all with this chapter. Thank you so much. Hope you all have understood this. In my blog you will see the important questions also for this chapter and the frequently asked questions in the previous years. Thank you so much.